Dear students, today we will discuss the measurement units. I am working as a dean training and placement almost from past 7 years, and I have attended many interviews. Now my common observation says that number of students do not know about the basic units of measurement. For example, बहुत सारे स्टूडेंट को ये मालूम ही नहीं है कि स्ट्रेस और प्रेशर के बीच में डिफरेंस क्या है। वजन जो है वेट, वजन का यूनिट क्या है वो बताएंगे किलो। राइट, बहुत सारे स्टूडेंट को यूनिट कन्वर्जेशन के अंदर हमेशा दिक्कत होती है। सो सो इन दिस वीडियो आई विल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक लेंथ, then velocity, acceleration, force, and then we will move on. We'll discuss the torque, power, viscosity, density, etc. So let us start with the first, distance. We measure the distance in meter and kilometer. For the smaller distance we use millimeter, mm or centimeter. We know the relation 1 centimeter is equal to 10 mm, right? Here you need to pause your video and need to understand this table. 1 centimeter is equal to 10 mm, right? Then we have decimeter, meter and kilometer. When we say k, kilo is 10 raised to 3. When we say m, means mega, 10 raised to 6, right? If it is 10 raised to minus 6, then we used to say micro, right? Now next is the velocity. Velocity is distance moved per unit time, means v is equal to change in distance ds by change in time dt. Change in distance means meter, time is second, so the unit is meter per second or kilometer per hour. Now remember that there is a difference between velocity and speed, right? Whenever we say speed, it may be in any direction. It means speed जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ नंबर 3, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सपोज एक कार जो है वो कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी अपनी बढ़ा रही है, मीन्स 1-2 मीटर पर सेकंड, 3-4 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, then we can say that the rate of increases in velocity is 1 meter per second. Now if it apply the brake suddenly, then it is the retardation, means negative acceleration. So the a is equal to dv by dt, means unit is meter per second square. Now gravitational acceleration is also very important term. If some object is falling free from certain height, initially when time is 0, velocity is also 0. Then after 1 second there may be some velocity, and as time increases velocity also increases. The rate of change of velocity is constant and the value is 9.81, right? So it is the gravitational acceleration. जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक सा लगता है। मीन्स हम अगर एक कोई हेवी चीज ले ले और एक बिल्कुल भी लाइट चीज ले ले और दोनों को वैक्यूम के अंदर फ्री फॉलिंग करने देंगे, तो दोनों में से पहला ऑब्जेक्ट कौन सा नीचे आएगा? नॉर्मली स्टूडेंट ये आंसर देते हैं कि जो हैवी है वो नीचे पहले आएगा, बट एक्चुअल के अंदर अगर एयर का रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, दोनों एक साथ में नीचे आएंगे, बिकॉज द वैल्यू 9.81 is constant for all. Now next is the force. We use the notation P or F for the force. So force is equal to mass m into acceleration a. We measure the mass in kg and acceleration in meter per second square. So combinedly kg per meter
kg into meter per second square is known as Newton, which is the unit of the force. Same is for the weight. मैंने आपको एक स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, ऑलमोस्ट किसी को पूछते हैं कि वजन का यूनिट क्या है, सो 100 में से 90 जन ये बताएंगे कि वजन केजी के अंदर मेजर होता है, बट इन एक्चुअली फॉर द टेक्निकल पर्सन द वेट इज मेजर इन न्यूटन बिकॉज वेट इज इक्वल टू मास इनटू जी, राइट? So it is Newton, right? But G is uniform. So in daily routine, we neglect the G and we just say kg, right? But technically, weight is measured in Newton. Next is a work done. Work done, WD is equal to force F into distance D. For example, एक ऑब्जेक्ट जो है उस ये ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ हम फोर्स लगाते हैं और कुछ ट्रैवल करके ऑब्जेक्ट जो है नई पोजीशन पे आता है, राइट? और ये डिस्टेंस जो है वो है d, राइट? सो फोर्स का अमाउंट है f, सो इसको बोलेंगे वर्क डन। यूनिट क्या होगा? फोर्स इज मेजर इन न्यूटन एंड डिस्टेंस इन मीटर, सो वर्क डन का यूनिट है न्यूटन इनटू मीटर। Combinedly it is known as the जूल, राइट? तो जूल जो है वो वर्क डन, हीट और सभी जितनी भी एनर्जी है सबका ये कॉमन यूनिट है। सपोज काइनेटिक एनर्जी, राइट? काइनेटिक एनर्जी क्या है? उसका इक्वेशन मालूम है हमें, 1/2 mv स्क्वायर, राइट? अगर कोई ऑब्जेक्ट v जितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 1/2 mv स्क्वायर। अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास हाइट है, राइट, देन वी डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी m g इंटू h, तो इसका यूनिट भी क्या होगा? जूल, राइट? हीट एनर्जी का यूनिट भी है जूल। नाउ नेक्स्ट इज द पावर। पावर इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। Rate of work done means time, right? Work done is measured in Newton into meter or it is joule per second, right? So joule per second, this is known as the watt, right? Denoted by W। ये जो है वोट, वो हीट ट्रांसफर का भी यूनिट है। हीट ट्रांसफर मीन्स ट्रांसफर ऑफ हीट पर यूनिट टाइम, so also we measure the heat transfer in watt, but if we say heat only, right, so if heat only then it is the energy means joule, but heat transfer is the watt। Now I have one question for you। एक आदमी का वजन जो है वो 150 है और दूसरे का वजन जो है 50 है, राइट? यहाँ पे मैं वजन बोल रहा हूँ, एक्चुअली ये वजन नहीं, क्या है? मास। केजी लिखा है तो ये होगा मास, बट वी निग्लेक्ट द 9.8, सो आई कैन से वेट। तो क्या कंडीशन होगी? यहां से डिस्टेंस जो है वो है 1 मीटर, यहां से जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर, राइट? तो कौन ऊपर जाएगा और कौन नीचे जाएगा? बट ऑब्वियस ये जो है कोई ऊपर नहीं जाएगा, कोई नीचे नहीं जाएगा और दोनों इक्वली हॉरिजॉन्टल रहेंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पे 3 है और 50 है, तो जो इफेक्ट यहाँ पे मिलने वाली है वो इफेक्ट, और यहाँ पे 150 है, डिस्टेंस 1 है, और यहाँ पे जो इफेक्ट मिलने वाली है वो दोनों इफेक्ट क्या होगी? सेम, राइट? तो ये क्वांटिटी कौन सी है? ये क्वांटिटी है टॉर्क, राइट? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। हमें मालूम है अगर हमें कुछ ऑपरेट करना हो, ओपन क्लोज करना हो, नट बोल्ट, राइट, तो जितना भी लीवर की लेंथ, ये आप देख सकते हो, अगर लीवर की लेंथ ज्यादा है तो जो फोर्स रिक्वायर है वो कम है। अगर लीवर की लेंथ कम है तो फोर्स जो है वो ज्यादा चाहिए। मीन्स टॉर्क की वैल्यू बढ़ाने के लिए आइदर वी कैन इंक्रीज द फोर्स
or we can increase the distance, right? So torque, it is denoted by T is equal to फोर्स P और F into the radius. जब भी हम दरवाजा खोलते हैं, right, तो what we apply on the handle, it will act on the hinge point, right? So it is a torque. So what will be the unit? Unit is again Newton into meter, but here we will write the Newton into meter only. इसको हम जूल नहीं लिखेंगे, right? So unit of torque is Newton into meter. Now next is a pressure. We know that pressure is equal to force by area. Suppose मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कुछ हम फोर्स लगा रहे हैं, right? ये एरिया के ऊपर फोर्स जो है वो F या P है, और इसका जो एरिया है A, right? So pressure is also denoted by P. So P is equal to F by A, means unit न्यूटन पर मीटर, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे पास्कल, राइट? प्रेशर इज आल्सो मेजर्ड इन बार. 1 बार is equal to, remember this value, 10 raised to 5 pascal, means 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट? सो यहाँ पे हमने कुछ एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एरिया के ऊपर लगाया है. नाउ नेक्स्ट इज अ स्ट्रेस. तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस भी बेसिकली है फोर्स पर यूनिट एरिया, बट डिफरेंस क्या है? सपोज एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब भी हम कुछ फोर्स लगाते हैं, राइट, तो एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स भी प्रोड्यूस होता है एज पर दी थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, राइट? तो ये रेजिस्टिव फोर्स जो है पर यूनिट एरिया इज नोन एज अ स्ट्रेस, राइट? स्ट्रेस के अलग अलग 3 प्रकार है. सपोज ये ऑब्जेक्ट जो है उसको मैं अलग अलग डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में और ये डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा, तो यहाँ से बीच में से ब्रेकअप होगा, राइट? तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया बनेगा, अगर वो लेता हूं, और ये फोर्स जो P है, राइट, तो इसके लिए हम यूज करते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया, और एरिया कौन सा होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया. अगर फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड है, राइट, और जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है पर यूनिट एरिया, तो वो होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस, राइट? यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस और यहाँ पे जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस. बट ऑब्जर्व दैट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज सेम, राइट? बट एक तीसरा केस लेते हैं जहां पे एक फोर्स जो है वो ऊपर की ओर है और एक फोर्स जो है वो नीचे की ओर है, और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम नहीं है, राइट? इन दिस कंडीशन ऑब्जेक्ट विल ब्रेक फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस सरफेस, राइट? ये कंप्रेसिव भी हो सकता है या टेंसाइल भी हो सकता है, राइट? सो व्हेन वन लेयर will move on another layer, right, the stress is known as the shear stress, right? So here it is compressive, sorry, tensile, here it is tensile, here it is compressive, and here it is shear stress. It is noted by tau, right? तो डिफरेंस अभी क्लियर हो गया. फोर्स जो है वो एक्सटर्नली क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो वो प्रेशर है, और जो एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका रेजिस्टिव इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो है स्ट्रेस. नाउ नेक्स्ट इज अ डेंसिटी. डेंसिटी इज डिनोटेड बाय द रो, राइट? इट इज मास पर, इट इज नॉट मल्टीप्लिकेशन, this sign, mass by volume. Volume is measured in meter cube, so the unit of density is kg per meter cube. Now we know that the density of the solid object is very much high, means the particles in a solid object is compressed very much heavily, right? In liquid
there is some space between the particles, so density is somewhat less. And for the gas, the distance between the particle is very much large, right? So the solid is incompressible, liquid is also incompressible, whereas gas is compressible, right? Liquid and gas is combinedly known as fluid, आपको ये पता होगा। और फ्लूइड जो है वो फ्लो कर सकता है। सो फ्लो करने के लिए भी एक प्रॉपर्टी हम डिफाइन करते हैं। डेंसिटी सिर्फ कॉम्पैक्टनेस है, राइट? उससे फ्लो करने की प्रॉपर्टी जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते। फ्लो के लिए हम डिफाइन करते हैं विस्कोसिटी, जो फ्लो के साथ रिलेटेड है। यू नो दैट द shear stress is proportional to velocity gradient del u by del y। ये क्या है? सपोज एक सरफेस के ऊपर कोई लिक्विड जो है वो फ्लो हो रहा है, राइट? ये जो लिक्विड बेसिकली जब भी फ्लो होता है तो एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर मूव हो रहा होता है, राइट? द फर्स्ट लेयर immediate after the solid surface is having the zero velocity, मीन्स यहाँ पे वो स्टेगनेंट है। एक इसके बाद कुछ वैल्यू आपको वेलोसिटी की मिलेगी, थोड़ी ज्यादा होगी जैसे जैसे आप दूर जाओगे। जो फ्लो रेजिस्टेंस है और दो लेयर के बीच के अंदर, राइट, जो रेजिस्टेंस है उस हिसाब से एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर जो है वो मूव होगा, राइट? तो ये जो हम मेजर करते हैं वो करते हैं वाई डायरेक्शन के अंदर। हमें कुछ वेलोसिटी के अंदर चेंज मिलता है। यहाँ पे होगा जीरो वेलोसिटी, 0 पर मीटर पर सेकंड, और जो ऊपर वाला लेयर है उसकी वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड है, और बीच में कुछ वेरिएशन है, राइट? तो ये डी यू जो है वो चेंज इन वेलोसिटी है, डी वाई जो है वो चेंज इन डिस्टेंस है। tau is equal to mu coefficient into du by dy। This coefficient is known as dynamic viscosity, right? So remember, dynamic viscosity mu is equal to tau by del u by del y। What is unit of tau? Tau is a shear stress, means measure in Newton per meter square। du by dy, du is the velocity, meter per second into 1 by meter, right? Distance is in meter, right? The unit of viscosity is Newton into second per meter square। Remember, this is the dynamic viscosity। Then we also define the kinematic viscosity nu। Kinematic viscosity nu is equal to dynamic viscosity mu divided by density rho। Now next is the electric power। We know that electric power P is equal to V into I। V is the voltage and I is the current। Voltage voltage is measured in, voltage is denoted by V, current is measured by I। Now electric power P is equal to V into I। V is the volt and I is the current। Unit of voltage V and current is ampere A, right? Also we use resistance R। R क्या है? जब भी करंट फ्लो होता है, राइट, तो बीच में करंट के फ्लो में जो भी रेजिस्टेंस है वो है R।
उसका यूनिट जो है वो है ओम। दिस इज द साइन। जैसे फ्लूइड को फ्लो होना है तो प्रेशर डिफरेंस चाहिए, वैसे ही करंट को फ्लो होना है तो वोल्टेज डिफरेंस चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज द हीट। वी हैव डिस्कस्ड लिटिल बिट अर्लियर। यूनिट ऑफ हीट इज जूल, या फिर कैलोरी भी हीट का यूनिट है। हीट जो है वो बेसिकली तीन टाइप से ट्रांसफर होती है। एक जो है वो है कंडक्शन, दूसरा जो है कन्वेक्शन, और तीसरा जो है वो रेडिएशन। ठीक। अगर कोई मीडियम है या मीडियम बीच में नहीं भी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से अगर हीट मिलती है तो वो रेडिएशन है। मीन्स माइक्रोवेव के अंदर भी हम रेडिएशन यूज करते हैं। फ्लूइड पार्टिकल के फ्लो से, राइट, एयर हो या लिक्विड हो, फ्लूइड पार्टिकल के फ्लो से अगर हीट ट्रांसफर हो रही है तो उसका रीजन जो है वो कन्वेक्शन है। और डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट से जो हीट ट्रांसफर होती है, मीन्स इट इज बिकॉज ऑफ द लेटिस वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मूवमेंट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, वो है कंडक्शन। तो हीट का यूनिट जूल है, बट व्हेन वी से द हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, so when we say heat transfer, it is a rate with respect to time. So in that case, the unit of heat transfer is watt. And if we say the absolute heat energy, it is the joule, because heat is also energy. So what we have discussed here is very much fundamental things. You must know the unit of all these quantities. There are number of quantities, depends on the branch, means mechanical, electrical or civil, but here we have discussed the basic. Hope you enjoyed this video. Best of luck for your future assignments.